Okay, so guys, let us start with today's class. Before I start, let us revise quickly whatever we have studied in the previous class. So we have studied two types of reinsurance policies. What were those two types? Proportional, and second one non-proportional. So one was proportional and second one was non-proportional. What was the difference? In proportional, the reinsurer will bear the exact percentage of each and every claim. But in non-proportional, what will reinsurer bear? Reinsurer will bear up to a certain limit or after a certain limit. So that limit will be called with which variable? M. M will be the retention limit. Suppose if retention limit is 10,000 and my claim comes up for 20,000. So कौन कितना देगा? So 10,000 will be beared by insurance company and remaining 10,000 will be beared by the insurance company. Let us talk about cash flows as well. Now suppose X amount का हमारा claim आया. So you have to tell me expectation of X, expectation of Y, expectation of Z in case of proportional, and expectation of X, expectation of Y and expectation of Z in case of non-proportional. प्रथम पीछे से नहीं देखना, जल्दी से. So मेरी रिटेंशन लिमिट मैं आपको बोल रहा हूँ अल्फा है. अब बताओ जल्दी से हम कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स? तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड. व्हाट विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस पॉलिसी? अल्फा टाइम्स परफेक्ट. दैट मीन्स अगर इंश्योरर कंपनी 70% बियर कर रहा है तो कितना क्लेम पे करना पड़ेगा? जितना भी क्लेम आएगा उसका 70% एंड रिमेनिंग 30% इसको बियर करना पड़ेगा रीइंश्योरर को. तो इस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉन प्रोपोर्शनल. नॉन प्रोपोर्शनल केस में भी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड. व्हाट विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इन केस ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल? कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्विकली एनीवन? इंटीग्रेशन 0 to m x fx dx plus m probability x greater than m. And what about in case of reinsurer? reinsurer के केस में हम कैसे पे करेंगे क्लेम को? इंटीग्रेशन m to infinity. What will reinsurer pay? Remember x minus m. बेटा m कौन पे कर रहा है? m अपना रहा है, इंश्योरर पे कर रहा है. तो रिमेनिंग x माइनस m कौन पे करेगा? रीइंश्योरर. फंक्शन वही रहेगा हमारा fx dx. तो ये सब हमने लास्ट क्लास में कवर करा था. कैश फ्लोज की भी अगर मैं बात करूं, y के केस में, z के केस में, if x less than m, if x greater than m, and similarly if x less than m and if x greater than m, what will be the cash flow for y? इंश्योरर कितना पे करने वाला है अगर x लेस देन m होगा तो? पूरा का पूरा क्लेम x. एंड व्हाट विल रीइंश्योरर विल पे इफ x इज ग्रेटर देन m? व्हाट विल इंश्योरर विल पे इफ क्लेम इज ग्रेटर देन रिटेंशन लिमिट m? एंड इन केस ऑफ रीइंश्योरर व्हाट विल रीइंश्योरर विल पे इफ x इज लेस देन m? कुछ भी नहीं देगा ना, क्योंकि उसने क्या प्रॉमिस करा इंश्योरर कंपनी को कि अगर आपका क्लेम रिटेंशन लिमिट से बड़ा आया तब मैं आपको उतना अमाउंट दूंगा. लेकिन अगर क्लेम ही हमारा, अगर रिटेंशन लिमिट हमारी 10K की है and our claim comes up to for 8,000, so what will reinsurer pay? Nothing. All will be beared by insurance company. Next, if x is greater than m, then x minus m. So ये सब हमने लास्ट क्लास में कवर करा था. We will start from here. So there were two topics, one for normal distribution, one for log normal distribution. That I will cover later on. मेरा पहला मन है कि हम थोड़ा सा concepts को और समझें. Quickly go through this. Inflation. I am giving you 2 minutes. Then we will discuss what impact your inflation will do into your claim amounts. Inflation समझ आता है सबको? What do you mean by inflation? What is inflation, हीना? प्राइस बढ़ रहा है. मान लो अगर हमारा एक्सपेक्टेशन था इस साल में हमारा क्लेम x अमाउंट का आएगा और जनरल इन्फ्लेशन हम अपना j% लेके चल रहे हैं. व्हाट विल बी एक्सपेक्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर? x amount into 1 plus j, and for the next year x amount into 1 plus j square, and so on. With respect to j%, our claims will move on. Now quickly read it and then we will understand how your inflation rate will make impact on proportional reinsurance and non-proportional reinsurance.
This is our first topic that we are going to cover today. ओके, ट्राई विथ दिस सिंपल क्वेश्चन, ये ट्राई करते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे. सो किसका केस है ये? हमारा प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस का केस है. सिंपली यहां पे रिटेन पोस्ट प्रोपोर्शन कितना है? अल्फा. अल्फा इज द रिटेन प्रोपोर्शन. So claims from a portfolio of policies are believed to follow an exponential lambda distribution. What is the exponential distribution? Lambda e raised to power minus lambda x. Very simple. A proportional reinsurance arrangement with a retained proportion of alpha is in force. You have to give an expression for the insurer's expected claim amount. क्या होगा? Alpha एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. चलो अगर हम लिख लें अल्फा इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, व्हाट विल बी योर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स? 1 बाय लैम्डा. सो क्लेम अमाउंट विल बी अल्फा बाय लैम्डा फॉर द इंश्योरर. नाउ क्विकली डू द सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, सेकंड पार्ट है इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट ईयर क्लेम अमाउंट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय एन इन्फ्लेशनरी फैक्टर ऑफ के. Derive an expression for the insurer's expected claim payment next year. Means वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारे क्लेम अमाउंट्स के परसेंट से नेक्स्ट ईयर में बढ़ जाएंगे. या फिर के परसेंट नहीं बोल के हम इसको बोलेंगे के इज 1 प्लस जे. के फैक्टर इज 1 प्लस जे. जे इज द इन्फ्लेशन रेट. के फैक्टर से बढ़ रहा है. नहीं, के परसेंटेज नहीं है बेटा, के इज द फैक्टर. जैसे अगर मैं बोलूं हमारा इन्फ्लेशन 5% है, देन के इज 1.05. एनीवन विद द आंसर? अल्फा प्लस के बाय लैम्डा. अल्फा प्लस के बाय लैम्डा. नॉट मेकिंग एनी सेंस. सो यू आर सेइंग अल्फा प्लस के बाय लैम्डा. Wrong. Anyone else? Alpha k by lambda. Right answer. Why? Why Hina? Sir, because inflation है तो हम k को expectation of x से multiply करेंगे. Exactly. और expectation of x में हमें proportional दे रहा है alpha. That is our. Very good. So guys, इसको ना आराम से समझते हैं. प्रथम, अगर मेरा इस साल क्लेम अमाउंट 10,000 का आ रहा है और मैं बोल रहा हूँ मेरी इन्फ्लेशन 5% की है, एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन की 5% की, मेरी महंगाई 5% से बढ़ने वाली है, तो नेक्स्ट ईयर में कितना एक्सपेक्ट करूंगा क्लेम अमाउंट? 10,500. तो आपने क्या करा? 1.05 इंटू 10,000. तो के फैक्टर मैंने क्या बोला? 1.05 रिप्रेजेंट कर रहा है. तो के इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू अल्फा क्या है? रिटेन प्रोपोर्शन ऑफ द इंश्योरर. तो क्या लिखेंगे हम? बताओ. सो व्हाट वी विल राइटिंग? के टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. ये किसका हुआ? टोटल क्लेम अमाउंट. लेकिन अगर मुझे इंश्योरर के लिए लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? के इंटू अल्फा इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या है? ओह सॉरी, या वो टर्म्स रीअरेंज कर लो. सो व्हाट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इज कि हमारा क्या चेंज होगा? सिर्फ इन्फ्लेशन के अमाउंट से हमारा टोटल क्लेम बढ़ जाएगा. क्लियर? So this is the thing. अब प्रोपोर्शनल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन्फ्लेशन फैक्टर, क्योंकि सिंपल सा केस है. अगर क्लेम 10,000 का आ रहा था, 70% अगर इंश्योरर बियर कर रहा है, तो जितने मर्जी से इन्फ्लेशन बढ़े उसने 70% ही बियर करना. मान लो अगर क्लेम मेरा 10,000 की जगह 15,000 का आ रहा है, उसने अभी भी 70% ही बियर करना. 70% कितना हो जाएगा 15,000 का? जो भी कर लो, 10,500 एंड रिमेनिंग 4,500 टू दी रीइंश्योरर. अब हम डिस्कस करते हैं एक्सेस ऑफ लॉस के लिए. एक्सेस ऑफ लॉस के लिए इन्फ्लेशन फैक्टर इंपॉर्टेंट है. ट्राई टू मेक द न्यू पे ऑफ्स.
जैसे अभी हमने डिस्कस करा था ये वाले पे ऑफ्स इंश्योरर के लिए जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे, अब आप उसके लिए डिस्कस करने की कोशिश करो इन्फ्लेशन के केस में. Why are the payoffs for the insurer? What will be the payoffs for insurer in case of inflation factor K? Try to make, then we will discuss. बस ये ध्यान रखना, पहले हमारा क्लेम अमाउंट कितना आ रहा था x, अब हमारा क्लेम अमाउंट कितना आएगा k इंटू एक्स. So you have to calculate y equals to what if kx less than the retention limit and kx greater than the retention limit. So guys, अगर kx लेस देन रिटेंशन लिमिट है तब इंश्योरर को कितना पे करना पड़ेगा kx, बट अगर kx ग्रेटर देन रिटेंशन लिमिट है अब इंश्योरर को कितना पे करने का m. सेम वही बात है, वही चीजें हमारी सेम रही, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कभी भी kx लेस देन m नहीं लिखेंगे. हम क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू kx इफ x इज लेस देन m बाय k, बिकॉज हमें डिस्ट्रीब्यूशन किसका गिवन होगा x का या kx का, x का. एंड सिमिलरली y इक्वल्स टू m इफ माय x इज ग्रेटर देन m बाय k. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, वो मैं चाहता हूँ आप में से कोई एक आंसर करे. इसकी एक बार डेरिवेशन देख लो जल्दी से, मैथमेटिकल पार्ट हो जाएगा. कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो. आई एम गिविंग यू 2 minutes. नाउ दे आर ट्राइंग टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन ऑफ y. पे ऑफ्स वही रहेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y का सबको फॉर्मूला पता है, y f by dy. So till 0 to m by k it is kx fx dx, and after that m x greater than m by k, and after that they have solved the integration. Just quickly look at it. You need fan? Hina, can you just switch on the fan? Try karo. Yes, this one. Quickly go through the derivation. Very simple one. किसी को कोई स्टेप ना समझ आए, you can ask me. मुझे इसको समझाना है आपको, फाइनल रिजल्ट को. मैथमेटिकल पार्ट आप लोग सब कर लोगे, सबका CS1 क्लियर है. So they are just applying what? Integration by parts. In the second step they are implying integration by parts. First constant, second integration minus total integration, first का differentiation, second का integration. अगर नहीं रूल याद, I am writing here first second integration minus whole integration d by dx of first and second का integration. ये रूल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. Now what I want to ask you, पढ़ ली तुमने, डेरिवेशन कर ली, कोई डाउट तो नहीं है. What I want to ask you, ये जो ओवरऑल हमारा मीन निकल के आया, इन्होंने क्या एज्यूम करा गाइस, x is following एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा. अगर हम नॉर्मल केस में एक्सपेक्ट करते, अगर हम प्रोपोर्शनल वाले केस में देख रहे तो हमारा क्लेम क्या आ रहा था, डायरेक्टली अल्फा इंटू के बाय लैम्डा. लेकिन यहाँ पे हमारा क्लेम अगर हम उस हिसाब से देखें, हमारा क्या आना चाहिए था, के बाय लैम्डा आना चाहिए था. लेकिन आप देख रहे हो इंश्योरर के केस में उसको के बाय लैम्डा से कम बियर करना पड़ रहा है, उसको के बाय लैम्डा से कम बियर करना पड़ रहा है. मेरा क्वेश्चन समझ आया? 1 बाय लैम्डा नॉर्मल केस में इंश्योरर एक्सपेक्ट कर रहा था उसके पास क्लेम्स आएंगे. इन्फ्लेशन के बाद वो क्या एक्सपेक्ट करता
k बाय लैम्डा आने चाहिए इंटू के, लेकिन उसके पास एक्सपेक्टेशन जो है वो k बाय लैम्डा से कम है. ऑब्वियसली दिस फैक्टर विल बी पॉजिटिव एंड 1 माइनस दिस फैक्टर विल बी लेस देन 1 ओनली. सो हमारा जो ओवरऑल क्लेम अमाउंट है वो k बाय लैम्डा से कम है. थिंक ओवर इट. आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स. ऑब्वियसली CS2 में इसको आप बहुत ज़्यादा ऐसे समझने की जरूरत नहीं होगी. CS2 इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल थिंग्स, बट व्हेन यू विल स्टडिंग SP7 SP8 आपको इन्हीं सब चीज़ों के नंबर मिलेंगे, आपको सिर्फ अप्लाई करना है. तो इसलिए मैं आपको करूँ 2 मिनट सोचो कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम है वो लेस देन k बाय लैम्डा है. एक नॉर्मल केस में हम देखें, अगर फिर से समझो, इंश्योरर के पास एक्सपेक्टेड क्लेम्स कितने थे 1 बाय लैम्डा. इन्फ्लेशन एडजस्ट करके कितने क्लेम्स आने चाहिए थे k इंटू 1 बाय लैम्डा, लेकिन उससे कम आ रहे हैं. थिंक ओवर इट. आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स. वी विल डिस्कस दैट. This can be your next interview question as well if you are giving an interview of genuine insurance company. Why? ठीक है. Exactly. This is the reason. Very good. Very simple. Guys, ऐसे सोचो, अगर रिटेंशन लिमिट से, अगर रिटेंशन लिमिट से कम का क्लेम आएगा तो इंश्योरर के क्लेम कितने परसेंट से बढ़ने चाहिए? इन्फ्लेशन परसेंटेज से. मींस एक एग्जांपल लेके समझते हैं. अगर रिटेंशन लिमिट हमारी m इक्वल्स टू 10 की है, 10,000 है. अगर क्लेम आया हमारा 8,000 का, अब चाहे उस पर इन्फ्लेशन भी लगा लो, अभी भी उसका क्लेम उतना ही आएगा. लेकिन अगर क्लेम अमाउंट हमारा ग्रेटर देन 10 के आया, तब इंश्योरर को कितना पे करना है? रिटेंशन लिमिट 10,000 ही पे करना है. लेकिन आपका क्लेम एक्चुअली में कितना बढ़ चुका होगा? 10,000 इंटू के. समझ आया रीजन? नहीं, प्रथम कंफ्यूज है. देखो एग्जाम्पल पकड़ो, 8,000 वाला एग्जाम्पल समझ आया? अगर 8,000 अगर क्लेम आया और अब कितना आएगा? 8,000 इंटू के. इन्फ्लेशन पकड़ लो 10% की है, तो कितना क्लेम आया? 8800 का. अभी भी तो वो उतना ही क्लेम पे कर रहा है. तो अभी तक आपके जो क्लेम्स थे वो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ रहे हैं, के हिसाब से बढ़ रहे हैं. लेकिन बाई चांस अगर आपका क्लेम अमाउंट इन्फ्लेशन से बड़ा आ गया या फिर रिटेंशन लिमिट से बड़ा आ गया, आपका क्लेम अमाउंट रिटेंशन लिमिट से बड़ा आ गया, तो उस केस में क्या होगा? क्या इंश्योरर भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटेंशन लिमिट बढ़ा रहा है अपने? नहीं. रिटेंशन लिमिट उसकी अभी भी कितनी रह रही है? एम ही रह रही है. उसने एम तक ही पे करना है. तो जो उसके बाद का इन्फ्लेशन का प्रोपोर्शन होगा वो किसको बियर करना पड़ रहा है? री इंश्योरर को. तो अगर इंश्योरर के क्लेम्स इन्फ्लेशन से नहीं बढ़ रहे, उससे कम से बढ़ रहे हैं, तो री इंश्योरर के क्लेम्स ऑब्वियसली इन्फ्लेशन से ज़्यादा से बढ़ेंगे उसको कंपनसेट करने के लिए. अब उसको आप सोचो क्यों, रिवर्स करके सोचो, री इंश्योरर के क्लेम इन्फ्लेशन से ज़्यादा क्यों बढ़ेंगे? वाई? क्योंकि वो सिर्फ रिटेंशन लिमिट ही पे करेगा इंश्योरर को, लेकिन जो उसके बाद जो इन्फ्लेशन के साथ जो अमाउंट बढ़ेगी वो री इंश्योरर. एग्जैक्टली, दिस इज द रीजन. क्योंकि रिटेंशन लिमिट के बाद वाले सारे क्लेम्स इन्फ्लेशन से बढ़ रहे हैं. री इंश्योरर को तो सारा बियर करना पड़ रहा है. वो भी बियर करना पड़ेगा री इंश्योरर को जो पहले उसको नहीं पे करना पड़ रहा था. उसका एग्जांपल समझते हैं. रिटेंशन लिमिट हमारी 10,000 है. सपोज प्रीवियस ईयर का कोई क्लेम 9,500 था और इन्फ्लेशन हमारी 10% है. अब ये क्लेम कितने का आ जाएगा? 10,000 समथिंग अराउंड, आई थिंक 450 टू बी एग्जैक्ट. अभी तक अगर 9,500 क्लेम आता तो क्या री इंश्योरर कुछ भी पे करना पड़ रहा था? जीरो. लेकिन अब वही सेम क्लेम अगर हम उसको के से बढ़ाएं तो कितना आ रहा है? 10,450. अब ये जो एक्स्ट्रा 450 है ये री इंश्योरर को बियर करना पड़ेगा. क्लियर? चलो अगेन, नॉट मच ऑफ यूज इन CS2 में आपको ऐसे कमेंटिंग के पार्ट कम आते हैं, आएंगे भी तो 1-2 नंबर के लिए. बट व्हेन यू गो फॉर फर्दर एग्जाम CP1 SP7 SP8 दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल अकर स्टेप बाय स्टेप. चले आगे, नेक्स्ट करते हैं डिस्कस. 2 topics are left. Second last topic is estimation. In this topic, what they are trying to say is, अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास सिर्फ अपने क्लेम अमाउंट्स का डेटा है, इंश्योरेंस कंपनी के पास अपने सिर्फ क्लेम अमाउंट्स का डेटा है जो उसने पे करा, तो क्या उसके पास वो डेटा मिल पाएगा जो उसने रिटेंशन लिमिट तक पे करा होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर रिटेंशन लिमिट हमारी 10,000 है और क्लेम आ रहा है हमारा 30,000, 40,000, 1 लाख, लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग, इंश्योरेंस कंपनी के पास सिर्फ वही डेटा है जो उसने पे करा, तो क्या उसको वो एग्जैक्ट अमाउंट्स मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसने डेटा सिर्फ क्या स्टोर कर रखा है?
जो उसने क्लेम अमाउंट पे करा है, और अगर क्लेम 1 लाख का आया होगा तो उसके पास उस डेटा में क्या होगा, सिर्फ 10,000। तो ऐसे केसेस में हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंप्लीट करें? विद फॉर दिस यू हैव टू यूज योर टॉपिक ऑफ सेंसर डेटा वाइल कैलकुलेटिंग एमएलई। अगर किसी ने CS1 नया नया करा है, CD3 नया नया करा है, वो बहुत इजीली रिलेट कर पाएगा। क्या होता था उस टॉपिक में? सेंसर डेटा फॉर कैलकुलेटिंग एमएलई। इंफॉर्मेशन मिसिंग होती थी, मींस अगर हमारे पास 100 क्लेम्स है, 90 क्लेम्स की मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास कौन से 90 क्लेम्स की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी? जो बेटा पे तो सारे करे जो रिटेंशन लिमिट से कम आए होंगे। क्यों? क्योंकि जो रिटेंशन लिमिट से ज्यादा आए होंगे उसके पास सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन है, रिटेंशन लिमिट की, तो उसने 10,000 पे करे। तो वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 100 हमारे पास टोटल क्लेम्स आए हैं, उनमें से 90 रिटेंशन लिमिट को नहीं मीट करे, तो उन 90 की हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन रिमेनिंग 10 की हमारे पास सेंसर्ड इन्फॉर्मेशन होगी। वो सेंसर्ड इन्फॉर्मेशन क्या होगी? दैट दीज 10 क्लेम्स आर ग्रेटर देन n, वट एवर n could be. In that cases, how to calculate our claim amount? Next question is this. So here you will be using your MLE technique. MLE के steps सबको याद है? क्या होते थे? First step taking pi, second step log, third step partial differentiation with respect to the parameter that you are going to find out, fourth step equating to 0, and fifth step double differentiate to check whether it is a maximum or not. Quickly do the next question. Online students, you can give your answers in the chat section. Meanwhile, I am looking into the chat section. So question is, claims from a portfolio. Claims from a portfolio are believed to follow an exponential lambda distribution. The insurer has effective individual excess of loss reinsurance with a retention limit of 1,000. That means M is 1,000. अब इस 1,000 से जो भी छोटे क्लेम्स होंगे उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी किसके पास? इंश्योरर के पास। लेकिन जो रिटेंशन लिमिट से बड़े क्लेम होंगे उनकी क्या इन्फॉर्मेशन होगी कि हमें नहीं पता एग्जैक्ट डेटा क्या है, लेकिन ये जो भी क्लेम्स होंगे वो ग्रेटर देन 1,000 रहे होंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इंश्योरर ऑब्जर्व्स अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 क्लेम्स एंड फाइंड्स दैट द एवरेज अमाउंट ऑफ द 90 क्लेम्स डू नॉट एक्सीड 82.9. There are 10 claims that do exceed the retention limit. Calculate the MLE of lambda. Not more than 5 minutes. Quickly do it. इससे आपका CT3 भी रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, CT3 की रिक्वायरमेंट सिर्फ इस रीइंश्योरेंस यूनिट में, उसके बाद ऑल टॉपिक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ CT3. ओनली चैप्टर 15, 18, 19, 20. So quickly frame the first equation. First we will be telling the first equation, then you can proceed with the calculation. Online students, quickly type your first equation and put it in the chat section. So what are the claim amounts following which distribution? Exponential distribution. What is exponential distribution? Lambda e raised to power minus lambda x. So quickly frame the first equation for L lambda, likelihood function for lambda. Okay, let us try to make the first equation
So you have to calculate L lambda. So what you will be doing? Pi of what? How many claims are there? I1 to 100 lambda into e raised to power minus lambda x I. So this will be your first step. What will be the second step? Lambda into e raised to power minus lambda x1 lambda into e raised to power minus lambda x2. कहाँ तक? 90 तक. Lambda into e raised to power minus lambda x 90. After that, what we will be doing for the next 10 claims? निकाले दो ना, क्या होता है? Probability x greater than x in case of exponential distribution. e to the power minus lambda x. यही होता है? यही होता है ना? तो क्या लिखेंगे इसको? e to the power minus what is x? 1000 to the whole power. So this will be your first step. बस इसके बाद शुरू हो जाओ. log partial differentiation equating to 0, double differentiation, and tell me the value of lambda. होल टू द पावर 10 क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास 10 क्लेम्स हैं ऐसे जो रिटेंशन लिमिट से बड़े हैं. Online students, you can put your answer in the chat section, the value of lambda, but I also need the equation for double differentiation as well. d2 L by d lambda square की भी equation चाहिए. If you guys require question, then this is the question. Okay, I have received first answer from the online student. Guys, quickly wrap up. Last 60 seconds. Anyone from the offline student has solved it? No. Okay, those who are stuck can look at the solution, others keep on continue doing it.
आई एम गिविंग यू 30 seconds more. Online students, I have received answers from only 4 students. Quickly speed up. This should be your area. यहाँ पे CS2 का कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा एक रिपीट क्वेश्चन है CS1 से. ओके गाइस, क्या करा है हमने यहाँ पे? हमने फर्स्ट इक्वेशन डिस्कस कर ली थी. नेक्स्ट स्टेप वी हैव टेकन log, then we have differentiated this equation, partially differentiated this equation with respect to lambda. After that, just rearranging by equating to 0, and there we have shown the double differentiation. समीशन xi कैसे निकाला हमने? क्योंकि हमें दिया हुआ था यहाँ पे जो ऐसे क्लेम जो 1000 एक्सीड नहीं कर रहे, उनकी एवरेज कितनी है? 82.9. तो उनका समीशन xi कितना हो जाएगा? 82.9 into 90. That's it. Clear? Easy. ओके, कर लो कंप्लीट, फिर लास्ट टॉपिक में मूव करते हैं. Okay guys, last topic of this chapter, policy access. Again quickly have a look for 2 minutes, then we will discuss. This is the last topic. इसके बाद सिर्फ हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस रह जाएगी आज की रिमेनिंग क्लास, और उसके बाद एक और क्लास हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे इन्वेस्ट करेंगे. देन विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर. क्विकली हैव अ लुक, देन विल डिस्कस पॉलिसी एक्सेस. यहीं से पता लग रहा है बेटा सारा आंसर, और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट डू मीन बाय पॉलिसी एक्सेसेस? इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक, जैसे हम 10,000 पकड़ लें, 10,000 से छोटा जो भी क्लेम होगा वो कौन बियर करेगा? पॉलिसी होल्डर इटसेल्फ. और जो 10,000 से बड़ा क्लेम होगा उसके बाद का क्लेम कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी. तो ये आपको कुछ कुछ री इंश्योरेंस ट्रीटी जैसा नहीं लग रहा? तो पॉलिसी होल्डर के केस में इंश्योरर ऐसे ही बिहेव करता है जैसे नॉर्मल केस में री इंश्योरर इंश्योरर के लिए बिहेव करता है. ये आप चीज याद रख सकते हो. अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिसी एक्सेस? इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी एक्सेस की रिक्वायरमेंट क्या है? क्यों जरूरत है कि वो एक ऐसा पॉलिसी एक्सेस लगा रही है 10,000 तक आप बियर करो, उसके बाद हम बियर करेंगे? केयरलेसनेस. तो केयरलेसनेस के लिए टर्म क्या यूज करते हैं हम? मॉरल हजार्ड. मॉरल हजार्ड. व्हाट इज मॉरल हजार्ड? मान लो एक पॉलिसी होल्डर ने होम इंश्योरेंस लिया. होम इंश्योरेंस के केस में उसकी कंटेंट कवर है अप टू 1 लाख. अप टू 1 लाख की अगर कंटेंट कवर है, तो अगर पॉलिसी एक्सेस नहीं लगा रही कंपनी, मान लो 50,000 का पॉलिसी एक्सेस लगा रही है केस में, एक केस में नहीं लगा रही, जिस केस में नहीं लगा रही, तो उस केस में हो सकता है पॉलिसी होल्डर थोड़ा सा केयरलेसनेस करे अपना घर लॉक करने में. लेकिन अगर पॉलिसी एक्सेस होगा, उसको पता होगा कि हमने इनिशियल अमाउंट खुद ही बियर करना है, तो पक्का 4 बार लॉक चेक करेगा. क्लियर? सो दिस इज द मेन रीजन फॉर पॉलिसी एक्सेस. एनी अदर रीजन? कोई और रीजन भी हो सकता है? परफेक्ट. ये दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि छोटे मोटे क्लेम्स प्रोसेस करने में दिक्कत ना हो सकता है. अब होम इंश्योरेंस लिया 1 लाख का, अब कोई पर्सन आ जाए जी हमें 2,000 का क्लेम चाहिए, बेटा इतनी तो आपको प्रोसेस करने में कॉस्ट लग जाएगी जितने का वो क्लेम करेंगे. तो ऐसे छोटे मोटे क्लेम्स कंपनी के पास वो नहीं लेके आएंगे. क्लियर? सो दीज आर द 2-3 पॉइंट्स. मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब पॉइंट्स के बारे में सोचना शुरू करो अभी से, क्योंकि CS1 CM1 में आपने सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करा. जिसने करा कंटेंट पे फोकस, वेरी गुड. लेकिन फ्रॉम CS to CM2 आई ऑलवेज से कि अपना दिमाग को चलाना शुरू कर दो, क्योंकि इसके आगे वाले एग्जाम्स में न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है. इफ आई टॉक अबाउट CP1, SP सीरीज, SC सीरीज, कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है. वहाँ बैठ के सभी पॉइंट जनरेट करने हैं. आपको रैंडमली एक दे देंगे, कैप कंपनी आई है, क्या उसके रिस्क हैं कैप कंपनी के अपना बिजनेस सेटअप करने में,
तो अब इसमें कुछ आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं होना, यहाँ पे सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे. क्विकली डू दिस क्वेश्चन, अगेन प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट मोर देन 4 minutes. सो बस यहाँ पे पॉलिसी एक्सेस को एल वेरिएबल से इन्होंने डिनोट कराया, जैसे हमने रिटेंशन लिमिट को एम से कराया था. बिल्कुल सेम पे ऑफ्स है जैसे रीइंश्योरर के पे ऑफ्स थे. An insurer believes that claims from a particular type of policy follow a Pareto distribution with parameters alpha this, lambda this. So this is a 2 parameter Pareto case. Again tables में आपको 2 type of Pareto distribution मिलेंगे, 2 parameter and 3 parameter. The 2 parameter वाला है. The insurer wishes to introduce a policy excess so that 20% of losses result in no claim to the insurer. आपको निकालना क्या है? Size of the excess. That means L. You have to calculate L. What is L? Again, first try to make the initial equation. सिर्फ initial equation बना लो, बाकी question हो जाएगा. कौन से केस में इंश्योरेंस कंपनी को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी x लेस देन l. हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्या लिखा है? 20% ऑफ लॉसेस रिजल्ट इन नो क्लेम टू द इंश्योरर. तो अगर मैं x लेस देन l कर दूं तो उस केस में क्या होगा? इंश्योरर को कुछ भी बियर नहीं करना पड़ेगा. तो इसकी प्रोबेबिलिटी में कितनी गिवन है? 0.2 और 20%. दैट्स इट. अब इसके आगे है क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड. You can just quickly look at the cumulative distribution of Pareto distribution from your tables. And quickly give me the value of L. Tables नहीं है. 1 minus lambda upon lambda plus x raised to power alpha. This is the cumulative distribution of 2 parameter Pareto distribution. 1 minus lambda upon lambda plus x raised to power alpha. Online students, quickly give your answer in the chat section. Guys, in doubts? हो गया? चलो पूछूँ मैं 2 मिनट बाद. Online students, quickly give your answers. Again, I have received only answers from 4-5 students. I need maximum participation. Okay, Pratham, what is your answer? अगेन इसकी कैलकुलेशन में तो किसी को कोई डाउट नहीं है. सिंपली 1 माइनस 900 अपॉन 900 प्लस एल होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0.2. 1 को वहाँ ले जाओ 0.8 बन जाएगा, 2 को वहाँ ले जाओ अंडर रूट बन जाएगा. ये सिंपल मैथ्स हम सब कर सकते हैं. फाइनल आंसर इज 106.23. क्लियर? अब CS2 सॉल्व करते वक्त
आई विल नॉट एडवाइज यू कि आप ये पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है पढ़ने में, अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन अगर आपके पास कम टाइम आप डिवोट कर पा रहे हो तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ तक करके छोड़ सकते हो, बिकॉज अब आप 2-3 एग्जाम्स पढ़ चुके हो, आपको इसकी कैलकुलेशन में तो कोई डाउट नहीं आने वाला। समझ आ रहा है? स्मार्ट स्टडीज करना शुरू करो, क्योंकि अब होगा क्या, जब हम अपना CT4 वाला कंटेंट पढ़ेंगे, मार्कऑफ चेन्स, मार्कऑफ जंप चेन्स, उसमें क्या होगा, हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। उस 15 मार्क्स के क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या होगा, 4-5 मार्क्स के लिए सिर्फ आपको मैट्रिक्स बनाना होगा या चेन बनाना होगा, वही सबसे ट्रिकी पार्ट है। अगर वो हो जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आगे वाले स्टेप्स आराम से हो जाते हैं। तो हमारा मेन क्या रहेगा, हर क्वेश्चन का मैट्रिक्स बनाते चलना। मीन्स इफ यू आर प्रैक्टिसिंग 20 क्वेश्चंस, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, 5 क्वेश्चंस करने का टाइम है पूरे पूरे, या 20 क्वेश्चंस का टाइम है, एटलीस्ट आप मैट्रिक्स बनाओ। सो आई विल एडवाइज यू व्हाट टू डू, 20 क्वेश्चंस के मैट्रिक्स बनाओ और 3-4 क्वेश्चंस आप पूरे पूरे कंप्लीट कर लो। क्लियर? सो यू हैव टू डू स्मार्ट स्टडी इन CS2. सो दिस कंप्लीट्स अवर चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस इज लेफ्ट। अब हम आते हैं वापस से अपने फर्स्ट सेक्शन पे, जहां हमने अपने 2 डिस्ट्रीब्यूशन छोड़े थे। वो क्यों छोड़े थे? क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल कैलकुलेशन लगनी थी जो अभी तक आपने किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ी। जिसने CM2 पढ़ा होगा, हो सकता है उसने डिस्ट्रीब्यूशन देखा हो। हाउ टू कैलकुलेट कैलकुलेशंस फॉर नॉर्मल एंड लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम एक स्पेशल तरीके से सॉल्व करते हैं, ट्रंकेटेड मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ट्राई टू लुक एट दिस, देन वी विल डिस्कस। Again, you don't need to learn this formula where it is present in your tables booklet. Also, if you are giving from IFOA, अब तो टेबल्स की भी जरूरत नहीं है, सीधा बुक खोलो, काम खत्म। और अगर II से प्रिपेयर कर रहे हो तो टेबल्स बुकलेट में ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन है। हो सकता है इस बार II के एग्जाम्स फिर से ऑनलाइन ऑफलाइन हो जाए, मे बी, देयर इज अ चांस। IFOA के नहीं होते, 2023 को उन्होंने टाइम टेबल दे दिया। So guys, what this formula is saying, ध्यान से समझना, L to U. What is L to U? L is the lower limit, U is the upper limit. X fx dx. X is following what? Normal distribution. Normal distribution क्या होता है? With parameters mu and sigma squared. U into capital phi U dash minus capital phi L dash. Don't confuse this U dash and L dash with their differentiation. ये differentiation नहीं है, ये सिर्फ एक notation है। Clear? आप ये भी समझ सकते हो, ये U को अगर A लिख दूं तो ये कोई A dash नहीं है, मतलब उसका differentiation नहीं है। आप इसको U dash को B भी मान सकते हो। ये एक अलग वेरिएबल यूज करने की जगह उन्होंने U dash और L dash यूज कर लिया। क्लियर? इसका कोई differentiation से लेना देना नहीं है। अभी के लिए सिर्फ समझो U dash L dash कुछ है, माइनस सिग्मा स्मॉल फाई U डैश माइनस स्मॉल फाई L डैश। किसी को याद है स्मॉल फाई और कैपिटल फाई में क्या डिफरेंस होता था? एनीवन फ्रॉम CT3? स्मॉल फाई इज PDF, कैपिटल फाई इज CDF। सिंपल। स्मॉल फाई क्या बताएगा, उस पॉइंट पे क्या प्रोबेबिलिटी है, कैपिटल फाई क्या बताएगा, उस पॉइंट तक क्या प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? मीन्स स्मॉल फाई इज टेलिंग यू प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x, capital phi is telling you probability x less than equals to x. Clear with this? अब हम आते हैं L dash U dash पे, अब डिफाइन करते हैं। So this is lower limit minus mean upon sigma, U dash is upper limit minus mu by sigma. Again ये फॉर्मूला आपको क्यों गिवन है? अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन हो तो प्रॉपर उसका x f x सॉल्व करने मत बैठना। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखे तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, और लॉग नॉर्मल दिखे उसका हम आगे पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, एक स्पेशल केसेस पूछ लेते हैं। स्मॉल फाई इंफिनिटी, स्मॉल फाई माइनस इंफिनिटी क्या होता है? स्मॉल फाई इंफिनिटी, कैपिटल स्मॉल फाई माइनस इंफिनिटी, दोनों पे जीरो होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेल्स पे प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी। अब उल्टा पूछता हूँ, कैपिटल फाई माइनस इंफिनिटी, कैपिटल फाई minus infinity and capital phi infinity. Capital phi minus infinity is 0. Why? Again same logic, वहां तक 0 रहेगा, और capital phi infinity is 1. सारी probabilities हमने कंसिडर कर ली। capital phi 0 is 0.5, सिंपली मिड पे क्या होएगा 0.5। अब करो क्वेश्चन।
Claims from a particular portfolio are normally distributed with mean 800 and standard deviation 100. An individual excess of loss arrangement with retention limit is 860 is in place. Calculate the insurer's mean claim amount net of reinsurance. सर अगेन फर्स्ट इक्वेशन पहले टैली कराओ, फिर कैलकुलेशन में मूव करेंगे. आई एम गिविंग यू 90 seconds to make the first equation. Online students, you can put your equations in the chat section. अगेन याद रखना, इंश्योरर के केस में रिटेंशन लिमिट से कम सारा उसका, रिटेंशन लिमिट से ज़्यादा ओनली रिटेंशन लिमिट. ये चीज़ दिमाग में बिठा लो इस यूनिट के लिए, बार बार आपको पे ऑफ बना बना के देखने की जरूरत ना पड़े. करें इनिशियल इक्वेशन डिस्कस. सो व्हाट विल बी द इनिशियल इक्वेशन गाइस? व्हाट विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ y? It will be integration 0 to 8, just wait, 860 x fx dx. Again x is following normal distribution plus 860 probability x greater than 860. That's it. Do it quickly in not more than again 4 minutes. Now rest is your calculation. Again जो हमने फॉर्मूला सीखा है सिर्फ उसको आपको अप्लाई करना. नो नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला, कोई जरूरत नहीं उसको याद करने की. अभी हमारे पास बहुत कुछ आएगा CS2 में याद करने के लिए. बट स्टिल आई विल एडवाइज यू, जो IFOA से भी एग्जाम प्लान कर रहे हैं, टेबल से फॉर्मूला याद रखो, इजी रहेगा. आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, आप बुक में बैठ के ढूंढोगे कहाँ फॉर्मूला गिवन है. सो इट्स बेटर टू रिमेंबर द पेज नंबर ऑफ द फॉर्मूलाज ऑफ द टेबल्स. If you need formula, I can open that. I am assuming everyone is having the tables booklet. No? You can share this. So guys, these are our initial classes. That's why I am asking you to do full question here. जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, we will not be doing calculation in our classes. We will be just be framing the initial equations and then rest calculation you can do at your home. But it's okay. These are initial classes. Keep on solving questions in a full. Not more than 5 minutes for this question. For calculating small phi x, you can just use the formula given on page 10. For calculating small phi x, open page 10 of your tables booklet. It will be 1 upon under root 2 pi e raised to power minus half x square. And for calculating capital phi, you have to use standard normal tables given on page 160 and 161.
For small phi, open page 10. It will be 1 upon under root 2 pi e raised to power minus half x square. And for calculating capital phi, 160 and 161. Nice speed online student. Very good. So guys, I have received answers from 2 online students. Quickly speed up. And guys, how you will be calculating probability x greater than 860? Simply converting into z. How? 860 minus, what is the mean? 800 upon 100. Total revision of CS1 or CT3. Anyone with the final answer from offline students? 596.13. Okay. Quickly tally your calculation where you have done wrong and ask me if you have any doubts. आई एम एज्यूमिंग आप में से कोई भी 5 8 की वैल्यू ढूंढने नहीं बैठ गया था. अगर कोई भी वैल्यू 4 से बड़ी हो तो उसको आप अप्रोक्सीमेटली 0 लिख सकते हो या फिर ये बोलो 5 से बड़ी हो. Similar the case with the -5 as well. कैपिटल 5 मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे -8 था तो 1 माइनस वो चीज़ हो गई 1 आ गई 580 1 आ गया. टोटल क्या बन गया अप्रॉक्सीमेटली 0. जितना आप इन्फिनिटी की तरफ जाते रहोगे उतना वो 1 बनता रहेगा और जितना वो अपोजिट जाते रहोगे उतना वो 0 बनता रहेगा. So 96% probability values of standard normal distribution lies between -2 to 2. Anyone having any doubt anywhere?
You can ask me. Straightforward calculations. प्रथम मिली मिस्टेक. डन. चले आगे. एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे लॉग नॉर्मल के लिए. इसका भी एक बार फॉर्मूला देख लो जल्दी से. बस यहाँ पे इन्होंने यू के एल के लिखा है क्योंकि यहाँ पे जनरल फॉर्मूला मोमेंट्स के लिए है. तो अगर हमें एक्स स्क्वायर निकालना हो, ओके लेट मी ओपन, अगर हमें एक्स स्क्वायर निकालना हो तो हम के को क्या पुट कर देंगे 2, मीन्स वेरिएंस के लिए. वेरिएंस के लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे आप स्क्वायर पुट कर दो, के को 2 पुट कर दो, और मेन निकालना है देन के को 1 पुट कर दो. फॉर्मूला इज सिंपल, ई रेज टू पावर के म्यू प्लस हाफ के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर कैपिटल 5 म्यू के माइनस कैपिटल 5 एल के, एंड म्यू के इज डिफाइंड एज एल एन यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस के सिग्मा. अगेन के की वैल्यू क्या होगी जो आप निकाल रहे हो उस हिसाब से. मीन निकाल रहे हो तो 1, एक्स स्क्वायर निकाल रहे हो तो 2. क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आई नीड आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. अब सारे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगला. डू दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. Without looking at the tables booklet, what should be the answer for the first part? An insurer is considering taking out one of the following reinsurance treaty, treaty 1, treaty 2. The claims distribution is log normal with parameters this. Calculate the insurer's expected net claim payments in the following cases. कोई भी treaty नहीं है, उस केस में क्या निकालना है हमें, expectation of x. What is x following? Log normal distribution. Log normal distribution का मीन क्या होता है, e to the power म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर. तो कुछ किसी डिस्ट्रीब्यूशन को याद रखा करो चीज़ें. म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. म्यू पुट कर दोगे, सिग्मा पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा. जल्दी से बता दो क्या आया. 6768. आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट इज 6768. वेरी गुड हीना. नाउ डू बी एंड सी पार्ट क्विकली. 5076 बहुत ट्रिकी था. बी पार्ट नहीं. क्या बोला था हमें, ट्रीटी 1 में रिटेन, कितना रिटेन कर रहा है इंश्योरर, 75%. तो हमने क्या करना है, सिंपली इसका 75% निकाल देना. नाउ डू द थर्ड पार्ट. फॉर दैट आई एम गिविंग यू 5 minutes. उससे छोटी है कैलकुलेशन, लेकिन जो अभी हमने नॉर्मल के लिए करा था उससे छोटी है हमारी कैलकुलेशंस. हो जाएगा इन 3 to 4 minutes. So what treaty 2 is saying, retention limit of 25,000. 25,000 से कम सारा इंश्योरर, 25,000 से ऊपर ओनली 25,000. सो इक्वेशन हमारी वही सेम बनेगी, 0 to 25k इट विल बी x fx dx प्लस 25k into probability of x greater than 25k, where x is following log normal distribution with parameters
8.5 and 0.64. Again, these are the parameters of log normal distribution. ये मीन और वेरिएंस नहीं है. हाँ, तो पॉलिसी एक्सेस लिखा होगा. यहाँ पे वैसे ही इंश्योरर और री इंश्योरर की बात कर रहे हैं. अच्छा, एक चीज और डिस्कस करते हैं. अगर पॉलिसी एक्सेस री इंश्योरेंस के केस में हो तो कैसे वर्क होगा? जस्ट पॉज दिस क्वेश्चन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो जस्ट पॉज दिस क्वेश्चन. टेल मी, अगर पॉलिसी एक्सेस री इंश्योरर के केस में होगा तो उसको कैसे हम वैल्यूएट करेंगे? सर एक सर्टेन लिमिट तक पॉलिसी होल्डर पे करेगा, उसके बाद इंश्योरर. उसके बाद री इंश्योरर. अगेन, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, अगर मल्टीपल री इंश्योरर्स होंगे तो मल्टीपल लेयर्स बन जाएगी. वैसे उस केस में भी हमारी मल्टीपल लेयर्स बन जाएगी. अगेन कंटिन्यू विद द क्वेश्चन. Online students, quickly put your answers in the chat section. Guys, how you will be calculating this element, probability x greater than 25k? What will be your first step? Taking log both sides. ln x greater than ln 25k. उसके बाद ये जो ln x है ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? नॉर्मल. We have learned in CS1, if x is following log normal distribution with parameters mu comma sigma square, then ln x will be following normal distribution with parameters mu comma sigma square. पहले ln x में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको z में कन्वर्ट करेंगे by subtracting mean and variance. Last 2 minutes, guys. Quickly complete it.
Online students, quickly put your answers. आया आंसर किसी का? कितना आया? 80। फाइनल आंसर, फाइनल एक्सपेक्टेशन ऑफ आई। आपका कितना आया? क्या हो गया आज? किसी भी कैलकुलेशन मैच नहीं कर रही। आई हैव रिसीव्ड ओनली वन राइट आंसर ओनली टिल नाउ, दैट ऑल्सो फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट। ओनली वन राइट आंसर, वेरी बैड। You guys are making equation correct but not solving the question. क्या करें? 12th की NCERT खोले इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें तो इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला से अप्लाई करने हैं और टेबल से वैल्यूज चेक करनी है। चलो एक एक वैल्यू चेक करते हैं क्या आप लोगों ने निकाला। U1 कितना निकाला है? U1 व्हाट इज U1? अगर लिखा है तो यही गलत निकाला है। 1.23329। अगर 1.233 ले रहे हो तो एटलीस्ट 3 टाइम्स 3 लो। 1.2333 राउंड ऑफ करके, उससे इतना फर्क नहीं पड़ना है। फिर भी ये मत सोचो कि इसलिए मेरा आंसर गलत आया। अगेन L1 कितना आया? तो कितना हो जाएगा? 5L1 0 ही होने वाला है। और 5U1 कितना लिया? 0.89126। यहाँ तक तो ठीक करा। कहाँ गलती हुई? देखो ये दोनों सही निकाले। लुक एट माई स्क्रीन। 0.89126 and 5L1 is 0. After that you just have to put। ये फिर ये वाला पार्ट गलत निकाला होगा। वेरी गुड, 1 में से माइनस ही नहीं करा। x ग्रेटर देन निकालना था, x लेस देन निकाल दिया और पुट कर दिया प्रोबेबिलिटी को, है ना। इंश्योरर पे करेगा 25,000 इफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन 25 के, राइट ही ना? नो चलो ठीक है, ये सब चीजें इसलिए प्रैक्टिस जरूरत है। अब ऐसा नहीं आपको फॉर्मूलाज आते हैं। अब देखो अच्छे वाले सबको फॉर्मूला समझ आए, लेकिन जब करने बैठे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही, तभी मैंने बोला मेरी उस बात को ऐसे मत लेना कि अगर 20 क्वेश्चंस है तो 20 क्वेश्चन को प्रेफरेंस दो और इक्वेशंस बना के छोड़ दो, लेकिन 4-5 क्वेश्चंस कंप्लीट जरूर करने हैं, वरना हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला कैलकुलेशंस में। दैट्स व्हाई वी हैव प्रिपेयर्ड असाइनमेंट्स, यूटीज, उसका वही रीजन है उसको अटेम्प्ट करने का। अब आपका नेक्स्ट वीक तक क्या टारगेट रहेगा? आप वीडियो से भी फॉरवर्ड कर सकते हो 18th, 19th, 20th इसको खत्म कर सकते हो और पास्ट पेपर्स पे भी मूव कर सकते हो चैप्टर 18 के। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी प्रैक्टिसिंग सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 18. Okay, after that we'll move to chapter 19. Okay guys, so that's it for today. We'll continue in the next class.